Okay, so here we start with the discussion of paper of 2020 September subject, which is the unique edition by ASS. No one in the country did this in that deep fashion, so we did. So I hope you people will take full advantage of this. So we are starting with question number 1. The paper is it's basically the September paper. Let me tell you, it is September 2020 subject paper, right? So it is a September 2020 subject paper, and we are having 100 question almost. The paper 1 discussion have already been done by Tanya ma'am, and now we are moving toward the subject discussion, right? So now let's start. So if you see the first question which is there, the first question, if you see, so this is basically this thing which I was highlighting, that this is basically the paper of September 2020 environmental science paper, right? So we made the detailed solution of that. Each year we provide you guys, and this year also we are providing you guys. So you have to make full use of it, right? Make full use of it. Now let's start with question number 1, as mentioned here. So this is the address where we belongs to. The people, those who are interested, can join in. We are starting on like 16th of May, the fresh batch for November 2021. Yeah. So here it comes, the question number 1. And we will be doing the detailed dissection of these things most probably. So what the question says, right? See, I will be telling you here the techniques that how you can topple down the question as early as possible, right? So if you see this question, the question number 1, which says that match the list 1, which is atmospheric stability, with the lapse rate. So we have already taught you it in the topic, these lapse rates, and along with the air pollutions. And Ali sir is currently taking this in atmospheric dynamics also. Abhishek sir have also taught a special course over it. So a lot of people have put up their expertise on this. And now we will be seeing the options and choose the correct answer. So as you see, for me, it's very simple. If you see this question, if I would have been a student, so I would have chosen the simplest one which can match on, right? So everyone know whether you are fully aware or not aware with the concept, though we have taught this in the class. So this have been there. So if I would have been student, I will choose the simple one, the neutral condition. So I will choose the simplest one first, which is the simplest hint for me. So let us suppose if I choose the neutral, so it will go like this. So these will match up like dry neutral, where ELR, environmental lapse rate, is equal to dry adiabatic lapse rate. So D will go for 1. So now my brain will say that which are the options where D is first. So I will have 2 probable options, either 2 or 3. So that means now I have to dig more deeper, right? I have to dig more deeper. अभी भी मेरे पास आंसर नहीं आया है, तो मुझे थोड़ा सा और डीप जाना चाहिए इसमें, and I have to choose that which could be the most probable answer, because एक simple one hint मैंने लिया तो वहां से मुझे बात नहीं बनी. So I have to dig more deeper. So if you think of absolutely stable condition, so absolutely stable condition, if you think of, so everyone knows this, that in the case of absolute stable condition, when you talk about, it is where ELR is less than DLR. So if you talk about absolutely stable condition, so ELR is less than DLR. Everyone know this, that environmental lapse rate when less than dry adiabatic lapse rate, then we say the condition or the atmosphere is stable or absolutely stable. So the option which we can go on here with the matching part, so it could be like this. So we will simply match this thing with what? So simply match this thing with 2. So it goes here. So now you can see that I have got a clear cut hint. Now अगर मुझे पता भी नहीं है तो भी मैं मैच कर सकता हूँ कि A2 हो
और D1 हो, तो A2 हो और D1 हो, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मतलब मिनिमम एफर्ट के साथ आप क्वेश्चन को कैसे ठीक कर सकते हो, माई पॉइंट ऑफ टेलिंग इज दिस। हालांकि आपको चारों ऑप्शन पढ़ाए गए, सब कुछ पढ़ाया गया, सब कुछ पता है, बट मिनिमम ऑप्शन के साथ कैसे आपको पिक करना होता है। तो अब अगर मैं देखता हूं दोबारा से जाके, अगर मैं रिविजिट करता हूं ऑप्शंस को, क्योंकि मेरा काम इसमें ये रहेगा डिस्कशन में आपको कि क्वेश्चंस को आपको देखना कैसे है, हाउ यू हैव टू सी। तो मिनिमम एफर्ट के साथ मैं देख सकता हूं कि A2 और D1, तो A2 और D1 सिर्फ एक ही चॉइस में है, which is choice number 2, right, which is choice number 2. And others also you are well aware that जो B है आपका absolutely unstable, absolutely unstable कब होता है guys? एब्सोल्युटली अनस्टेबल के केस में या अनस्टेबल के केस में ELR मोर देन DLR होता है। और ये भी आपको पता है कि जो कंडीशनली अनस्टेबल सिचुएशन है उसमें आपको पता है DLR इज मोर देन ELR मोर देन SALR, वेयर SALR इज सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये सब कुछ आपको बताया गया है कि ELR आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट है, DLR ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है, सैचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट है SALR। ये कंडीशंस भी आपको अच्छे से पढ़ाई गई है सारी, और बाकी डिटेलिंग्स हमने आगे सॉल्यूशन में डिटेल डिस्कशन में ऐड की है। द पीपल कैन गो थ्रू दैट, इट इज अवेलेबल विद देम, एवरी वन ऑफ देम, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन आपका क्या हो गया इसमें 2, वेयर A is 2, B is 3, C is 4 and D is 1. Is this clear to everyone? Anyone having any doubt in this question? मैंने सिर्फ आपको ये समझाना है कि आपको इजी वे से कैसे आप अपनी पढ़ी हुई नॉलेज को कलेक्ट करके इजी ऑप्शन निकाल सकते हैं उसमें से। ठीक है, क्वेश्चन को देखने का आपको स्टाइल पता होना चाहिए कि कैसे पकड़ना है और 1 मिनट में उसको गेट सेट एंड गो कर देना है, राइट। अब देखिए इस पे डिटेल्स कुछ कुछ हमने मेंशन भी की हुई है यहाँ पे सारी, बट वी विल सेव आवर टाइम and that you can go through because it is available with all you guys, right? So you can read more in Gilbert and chapter which is given there in notes for air. So here we have made that, like if you call about all the 3 conditions, so I will just briefly mention them, that if you see stability or absolutely stable, then you know that DLR is more than ELR, right? This is the condition that comes under stability, absolutely stability, right? Then if you go to the other one which is instable, like unstable, or right, then ELR is more than DLR. Then conditional stability, I have already told you that it is DLR more than ELR, then SALR. So these 4 conditions. Then wet neutral, which I have told you that ELR is equal to DLR, so it is here equal conditions, which was the simplest hint. So these all detail have been dry neutral is here, so all details have been added there. You can take the help of this. So I guess the question number 1 is clear to each and everyone. Anyone having any doubt in this? जल्दी से भैया रिस्पॉन्ड करेंगे अगर कोई डाउट है, क्योंकि ये आपको डिस्कशन के साथ साथ ये भी देखना है हाउ टू पिक अप द क्वेश्चन। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी, चलो 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 चलिए आगे चलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, ये सिंपल ही क्वेश्चन था, कुछ इसमें टफ नहीं था इतना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको पढ़ाया गया है अच्छे से व्हेन वी वर टीचिंग द यूनिट ऑफ रॉक एंड मिनरल। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर, राइट? व्हेन वी वर टीचिंग द यूनिट ऑन रॉक एंड मिनरल, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that this question is there, and you can see here that the question is very simple, that what is the correct sequence in decreasing order of hardness among the following. So before we deal this question, let's talk about the hardness scale, which is Moho scale. So I will go through some of the details about the Moh's hardness scale, and then I will come back to the question. So one of the most important tests for identifying the mineral specimen is Moho hardness. So this is basically a test, Moho hardness test or Moho scale of hardness. The test compare the resistance of the mineral to be being scratched by the 10 reference mineral. Means हम इस पे स्क्रैच करके देखते हैं एक मिनरल को दूसरे मिनरल से, तो the mineral which is more harder will scratch the other one, right? And this scale is specially known as Moho hardness scale. This specially known as Moho hardness scale, and this scale was developed in 1822 by Frederick Moho, right? And it ranges from
it ranges from hardness level of 1 to 10. Like 1 is the softest and 10 is the hardest. These are the some of the key points about this scale, right, which is there in rock and mineral unit and provided to you, right? On the other hand, if you see the scratching property, so Mohs hardness is measure of the relative hardness and resistance to scratching between the minerals. Like if I will scratch a mineral of hardness 10 to a mineral of hardness 9, so it can scratch the mineral of hardness 9. Same with 7, 8, 6, means lesser the hardness number, right, that mineral can be easily scratched. For example, we have with a higher hardness number, so we have minerals here. You can see very simply we have minerals here in one column, and on the other hand we have hardness scale, right, and the diagram is also given. The rest of the information is not too much of importance. So you can see here that if you talk about the hardness scale of 10 is diamond, means diamond is the most hardest, followed by corundum, which is on the hardness scale of 9, right, followed by topaz, which is on the hardness scale of 8, followed by quartz, which is on the hardness scale of 7, followed by orthoclase, which is on the hardness scale of 6. So we have already told you guys that the orthoclase is basically nothing, but it is also called as potassium feldspar. This is the trick. This is the logic where the question was framed by the teacher. Instead of writing the orthoclase, he wrote potassium feldspar in the option, right? And this was the thing which you have to analyze कि alternate name दिया है, ठीक है, orthoclase आपका पोटेशियम फेल्सपार हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, इसमें देखिए 6 पे आ गया एपेटाइट, 5 पे आ गया आपका, 5 is for एपेटाइट हार्डनेस स्केल. Then we have fluorite, which ranks at 4, right? Then we have calcite, which is at a hardness scale of 3. Then we have gypsum, which is 2, and the softest one is talc, which is the talc powder which we use, right? So this is the basic hardness scale. Now we can go back to the question. Question was very simple. It is saying you have to arrange in decreasing order of hardness. तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिख ले रहा हूं इसको, और अगर नहीं भी लिखूं तो मैं अरेंज करना स्टार्ट करूं. तो इफ यू टॉक अबाउट टोपाज, मैं लिख लेता हूं. टोपाज इज बेसिकली 8, राइट. टोपाज पे आप 8 मार्क कर सकते हैं, राइट. टोपाज इज बेसिकली 8, राइट. Then if you talk about topaz is basically 8. Then if you talk about orthoclase, which is nothing but potassium feldspar, it is at 6. If you talk about fluorite stands for 4. If you talk about gypsum stands for 2. So this was the logic there, and once we go back to this question, now you can easily arrange, like if I will draw these lines. Sorry. So now you can easily see that which one is what. So simply you can write down that topaz is having the hardness scale of 8. Feldspar, which is what? Which is orthoclase, right? Which is potassium feldspar is basically what? Orthoclase, which is there. So आप feldspar लिखिए, potassium feldspar लिखिए, या स्लैश करके लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है. Orthoclase एक ही बात है, मैं लिख देता हूं so that people should not be confused. Orthoclase लिखिए, इसका जो इंडेक्स है वो 6 है. उसके बाद फ्लोराइड का क्या है जी? 4 है. और जिप्सम का क्या है? 2 है. तो अरेंज कर लीजिए. क्या कह रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब
जो मैक्सिमम है वो सबसे पहले आएगा, तो मैक्सिमम जो है अगर सबसे पहले आएगा तो इट शुड बी टोपाज विच इज डी, then followed by feldspar which is C, then followed by fluorite which is B, then followed by gypsum which is A. ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, which is option number 3. Is this thing clear to each and everyone? किसी को कोई डाउट है इसमें? बहुत स्लो और काफी डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, बिकॉज आपको बेसिक आइडिया पिक करना है कि किस चीज को पकड़ना था, व्हाट यू हैव टू कैच. एक्चुअली कैच ही मेन चीज होती है, दैट हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन. ठीक है, ठीक है ना. और ये इस तरह का क्वेश्चन आपको दोबारा भी रिपीट हो सकता है, कोई और सीक्वेंस पूछी जा सकती है, बट मोहो हार्डनेस स्केल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इट हैव बीन वेल कवर्ड इन डिटेल इन योर रॉक एंड मिनरल यूनिट, राइट. चलिए आगे चलते हैं, आगे फटाफट से. अब टाइम आ गया है कि गियर लगा दिया जाए और डिस्कशन को जोड़ दिया जाए, बिकॉज आई एग्री दैट कंट्री में थोड़ा सा सिचुएशन टफ है, बट जो टफनेस में खेलते हैं वही टफेस्ट बनते हैं, दैट इज अ राइम. तो आपको बस यहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी और मोमेंटम को मेंटेन रखना है और आगे चलते जाना है. तो होपफुली ऑल ऑफ यू विल कम विद द जेआरएफ, आई कैन अश्योर यू. ठीक है, क्योंकि टाइम से पहले आपका सब कुछ ओवर हो चुका है, तो इट्स जस्ट अ रिविजनरी सेशन, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया जी थर्ड. ठीक है, डिटेल्स इसकी सारी दी हुई है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही ली है. ठीक है, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया इसमें. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, ये एनालिटिकल टेक्निक्स का क्वेश्चन है. बहुत अच्छे से और डिटेल में तान्या मैडम ने इसको कवर किया है और बहुत सिंपल है. मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसमें एक चीज पे फोकस करता जो बहुत ज्यादा सिंपल है मेरे लिए, और मैंने कई बार उसका नाम भी सुना है. सो आई वुड हैव गॉन विद दैट चॉइस. तो इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को पकड़ूंगा. वैसे तो जो पढ़ाई गई है आपको सारी पढ़ाई गई है, बट मेरा अगर पकड़ने का तरीका होता तो मैं इसको इजी वे आउट पकड़ता. ठीक है, मैं इसको इजी वे आउट पकड़ता. जस्ट अ सेकेंड गाइस. चलिए, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में जो आपको पकड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको सबसे पहली बात तो आपको इसमें ध्यान रखनी है, ये मतलब कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये सारी डिटेल आपके नोट्स में दी गई है. तो मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी आपका, सितंबर 2020 का ये डिस्कशन है आपका. अब देखिए पहले में एनालिसिस दिया हुआ है, ये सारे एनालिसिस है इस कॉलम में, और ये एनालिटिकल टेक्निक्स है जहां पे आपको मैच करना है. आजकल इस तरह के क्वेश्चंस का काफी फैशन है, राइट. दीज क्वेश्चंस आर इन फैशन. अब जब मैं इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करूंगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मुझे कहाँ पे इजी वे आउट मिल रहा है. तो ये सबको ये पता है कि जो भी आपका जैसे टेक्निक्स है, SEM है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, XRD है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, FTI है, IR है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे XRF है, एक्सरे फ्लोरेसेंस, ये सारी चीजों से आप वेल वर्स है, ऐसा नहीं कि वेल वर्स नहीं है. तो वन बाय वन चलते हैं. जैसे पहला जो इस पे दिया हुआ है आपका, टू एनालाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ पोल्यूटेंट, कि पोल्यूटेंट्स के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको कैसे आप एनालाइज करते हैं. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोल्यूटेंट के अंदर होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और उन फंक्शनल ग्रुप को एनालिसिस करने के लिए, ये आपको तान्या मैडम ने बताया भी होगा जनरली हम, ठीक है, तो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं. और इसीलिए इसको, ये आपका जो जाएगा किसके साथ जाएगा, ये जाएगा आपका FTIR के साथ. ठीक है, तो ए जो है आपका वो चला जाएगा किस पे, थर्ड पे, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, FTIR. बिकॉज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे विल बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, एंड दोस फंक्शनल ग्रुप कैन बी जज एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ FTIR. यहाँ पे ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं देयर विल बी सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी में OH है, किसी में COH है, किसी में NH2 है फंक्शनल ग्रुप. ठीक है,
है ना। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप वहां पे होते हैं दैट कैन बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एक तो ये हो गया, फर्स्ट के लिए मैं चला गया, थर्ड पे की फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरा करेक्ट आंसर है। नाउ आई एम कमिंग टू द अदर वन। बी पे जब आप आ जाएंगे, जब बी पे आ जाएंगे आप, टू एनालाइज द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट। जब आप एलिमेंटल कंपोजिशन की बात करेंगे तो आपको पढ़ाया गया है एलिमेंटल कंपोजिशन जो पोल्यूटेंट के है वो एक्सरे फ्लोरेसेंस से आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो बी आपका चला जाएगा फोर्थ के पास, क्योंकि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच शो फ्लोरेसेंस, राइट। तो फ्लोरेसेंस वो शो करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ पोल्यूटेंट, तो पोल्यूटेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट्स है, मान लीजिए पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, कोई और एलिमेंट है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट होगा वो एक्सरे फ्लोरेसेंस की हेल्प से एनालाइज करेंगे। ये भी आपको तान्या मैडम ने अच्छा पढ़ाया है। उसके बाद अगला ऑप्शन, अगले पे आ जाइए आप, सी पे। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पूछ रहा है। मॉर्फोलॉजी होती है मतलब स्ट्रक्चरल अपीयरेंस कैसा है बाहर से, उसका स्ट्रक्चर अपीयरेंस कैसा है। तो स्ट्रक्चर अपीयरेंस अगर आपको देखना है उस चीज का, तो आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। यू हैव टू स्कैन द सरफेस, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की बात हो रही है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की बात हो रही है, तो मैं चला जाऊंगा सैम के पास, ठीक है। तो दिस विल गो टू सैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, राइट, which is there in this discussion also. Then I will go to D to analyze the crystalline. तो जो भी आपकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगी, जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ये तो रिपीट हो चुका है बहुत बार, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला जो क्वेश्चन है ये पहले भी कई बार आ चुका है भाई, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे आप डिटरमाइन करते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है हमेशा कभी भी आप देखेंगे, इसको आपको हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है, ठीक है, जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फस तरह के होते हैं ना। तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है मटेरियल की पोल्यूटेंट के अंदर, जो भी आपका क्रिस्टलाइन मटेरियल है, उसको एनालिसिस करने के लिए आप एक्सरे डिफ्रैक्शन यूज करते हैं, एक्सआरडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, काफी फेमस ये टेक्निक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सआरडी। तो इनको अगर मैं मैच करूंगा और ये देखूंगा जो सीरीज मेरी बनी हुई है कि ए मेरा थर्ड के साथ जा रहा है, बी मेरा फोर्थ के साथ जा रहा है, ठीक है, सी जो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ पोल्यूटेंट है सैम के साथ चला गया, एनालिसिस ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल ऑफ पोल्यूटेंट goes to XRD. So if I come to a conclusion, then there is an option which is option number third, which would be the correct answer. So option number third आपका यहाँ पे correct answer हो जाएगा इसके लिए, राइट। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। हम इसको देख लेते हैं आगे, कुछ कुछ ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जैसे दिया हुआ है, सारा एक्सप्लेनेशन आपके पास ये है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज फोकस बीम ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स to generate a variety of signals at the surface of solid specimen। देखो देखा ना कि सरफेस को स्टडी करेगा, सरफेस मॉर्फोलॉजी को, सरफेस मॉर्फोलॉजी को ये स्टडी करेगा। यही चीज हाईलाइट करने की थी वहां पे। द सिग्नल दैट डिराइव फ्रॉम इलेक्ट्रॉन सैंपल इंटरेक्शन रिवील इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल इंक्लूडिंग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। देखो मेंशन है केमिकल कंपोजिशन, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मटेरियल मेक अप द सैंपल। तो ये तो सैम का हो गया आपका। उसके बाद we have given the detail of all other things, like we have given the details of XRD also, that how XRD can be used, X-ray diffraction. So X-ray powder diffraction is a rapid analytical technique primarily used for the phase identification of crystalline material। तो वहां पे जो crystalline pollutant है, ठीक है, and provide the information on unit cell dimension, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है XRD के लिए जो crystalline structure है उसमें ये काम आता है। Then we have XRF, yeah, FTIR we have, which is basically used for the functional group analysis. So Fourier transform infrared spectroscopy is analytical methodology used to understand the structure of individual molecule and composition of molecular matrix. तो individual molecule का जो interrogation होगा, identification होगा, वो functional group से ही होगा, इसीलिए, right? तो specific frequency के जो देखो mention है ना यहाँ पे, energy, the infrared light is absorbed at specific frequency related to vibrational bond energy of the functional group. This term is very important, the functional group present. So FTIR is the correct answer for this. So this question is done. Is it clear to everyone? बाकी details हमने add कर दी है, you people can have a look. काफी detail में है, depth में है ये. Is it clear to everyone? Anyone having any doubt? This was the question number 3. किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, जल्दी बताओ भाई फटाफट, ठीक है, क्योंकि हम करेंगे डेप्थ में, लेकिन टाइम का भी कंस्ट्रेंट है ना थोड़ा सा, उसको रखना है हमें, जल्दी से जल्दी हमें इसको डिस्कस करना है अच्छे से। चलिए
So all the people who are sitting, all people who are sitting on the session, they are clear about this question. Now let's move to the next question. Okay, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राइट। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, इसको भी देख लेते हैं भैया क्या है इसमें। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये बेसिकली आपका क्या कहते हैं, जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उससे आया है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट है। आजकल ये भी क्वेश्चन आ गए हैं स्टेटमेंट वाले, तो वन स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट। सो इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, जस्ट अ मिनट गाइस। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या है इसके अंदर। सो इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट टू मीट द एसेंशियल नीड्स इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, राइट। तो अगर आप इसको देखेंगे कि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, पहले हम इसके कुछ मेन गोल्स देख लेते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के, कि क्या क्या इसके सेलेंट फीचर है। सो दीज आर द सेलेंट फीचर ऑफ द गोल्स ऑफ द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। The first national forest policy independent India took effective in 1952, with the second edition came in 1988 in protection, conservation, development of forest. Salient feature of the goals of the national forest policy are these. ठीक है, कौन कौन से हम देख लेते हैं। नंबर एक, maintenance of environmental stability through preservation and restoration of ecological balances, conservation of natural heritage and existence, checking soil erosion, denudation in catchment areas of river, lakes and reservoirs, then checking extension of sand dunes in desert areas of Rajasthan and along coastal tracts, then substantially increasing the forest tree cover through afforestation and social forestry, then taking steps to meet requirements of fuel, wood, fodder, minor forest produce, oil, timber of rural and tribal population, and increasing the productivity of forest to meet the national needs. Then the next thing is encouraging efficient utilization of forest produce and optimum use of wood and timber, generation of work opportunities, involvement of women. So these are the silent objectives of this policy. Now let's go to the question number 4. What it says? It says increasing the productivity of the forest to meet the essential needs is one of the major objectives of the National Forest Policy 1988. ये तो बिल्कुल सही बात है जी, एकदम सही है, ये तो सही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नो फॉरेस्ट बेस्ड एंटरप्राइज शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। ये तो गलत है, ठीक है, ये तो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा बहुत करेक्ट पूछ लिया इसने कि क्या होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। सो वी हैव क्लियर कट आइडिया, द थर्ड इज द करेक्ट आंसर, वेयर वी हैव स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो द क्लॉजेस, राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? जल्दी बताइए फटाफट से, क्विकली भैया। वैसे तो सिंपल नहीं है, बट हमें अप्रोच थोड़ी देखनी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी देखिए क्या बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स दिए हुए हैं हमें ना, ठीक है। ये भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट दिए हुए हैं, बुकलेट 4 का ये पार्ट है, आपके बुकलेट 4 में अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, कि अरेंज द इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बेसिकली आपको ईयर्स का याद रखना है कि कौन कौन से ईयर्स में ये हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस देख लीजिए। जैसे साइलेंट वैली की अगर हम बात करें, साइलेंट वैली आपका जो है 1973 का है इवेंट, ठीक है। साइलेंट वैली जो है 1973 का इवेंट है, ठीक है, ये सारा मेंशन है आपके इसमें। उसके बाद आप चिपको मूवमेंट की बात करोगे, ठीक है, चिपको मूवमेंट की अगर बात करूं मैं, ठीक है, तो ये भी 73 के आसपास है। फिर एपिको मूवमेंट जो है, एपिको आंदोलन 1983 के आसपास का इवेंट है ये, ठीक है, 80s में है मतलब। उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन तो लेटेस्ट है बिल्कुल, जो आपका मेधा पाटकर की जी का था, ठीक है। तो अब इसको अरेंज ही करना है और कुछ है नहीं हमारे पास। तो अरेंज द मूवमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में जब आप इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल जब ऑर्डर में आप इसको अरेंज करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि
नर्मदा बचाओ आंदोलन तो सबसे लेटेस्ट है, तो वो सबसे बाद में आना चाहिए। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है आपका सबसे लेटेस्ट है, तो वो सबसे बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बाद में आना चाहिए, मतलब डी जो है मेरा वो लास्ट का है, सबसे हाईएस्ट है। उससे पहले क्या आ जाएगा, उससे पहले मेरा एपिको मोमेंट आ जाएगा जो सी है, क्योंकि ये 1983 में हुआ है मेरा। उससे पहले मेरा क्या आ जाएगा, उससे पहले मेरा ए आ जाएगा, साइलेंट वैली 1973 का इवेंट है। ठीक है, और उससे पहले मेरा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है ना, बी आ जाएगा, चिपको मूवमेंट जो आपका है। तो ये ऑर्डर हो गया भाई बी ए सी डी। तो बी ए सी डी वाला एक ही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? जल्दी बताइए। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ क्रोनोलॉजी आपको समझनी है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। इजी हिंट क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन इज द लेटेस्ट मूवमेंट विच हैव बीन डन बाय मेधा पाटकर। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाइए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारी डिटेलिंग्स हमने आपको दी हुई है, यू कैन हैव अ लुक एट दिस, ऑल दीज डिटेल्स हैव बीन मेंशन हियर। और ये आपको अच्छे से कराया भी है अंकिता मैम ने। न्यूमेरिकल आ गया जी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन उठ के आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। अभी जब टेस्ट हो रहा था तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन थे इस तरह के, विच इज वेरी सिंपल, नथिंग, कुछ नहीं है। एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो सबसे सिंपल बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ऐसी स्टेज पे आपका स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, दैट विल बी 24.45। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कहता है NO2 कंसंट्रेशन PP इज इक्वल टू हाउ मच। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको पता है सिंपल कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करना होता है तो कंसंट्रेशन इन ppb इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, देखिए यही चीज यहाँ पे हमने मेंशन करी है। एट 1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम आपका इतना है। मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका 46 है। मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ये NO2 का। NO2 का कैसे है, ये कैसे है भाई NO2 का, 14 प्लस 32 which comes out to be 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसको आप फार्मूले में डालेंगे, फार्मूला आपके सामने, दैट हाउ टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, सो कंसंट्रेशन ppb इनटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 24.45। तो आंसर आ जाएगा आपका 150.51। This is the correct answer and it is given in one of the option which is option number 4. So fourth is the correct answer in this question. Fourth, 150.4 microgram per meter cube. Is this clear to everyone? जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी से जल्दी, क्विक एंड फास्ट। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को किसी स्टेप में कहीं पे भी? क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में क्लियरिटी चाहिए डिस्कशन में, राइट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये जो आपको ये पता है चीजें पढ़ाई गई है, ऐसा नहीं है कि ये दिस हैव नॉट बीन टॉट।